Good morning, everybody. Myself, Ashok Kumar Dubey, Philip Ashok Solomon, an educator, Mission IAS. My dear guys, several reports we all are getting from several institutions like Reserve Bank of India, our central bank, several financial institutions, head financial institutions of our India, and on the basis of international global organizations. Several reports are publishing here. During the COVID-19, what is the manifesto and financial inclusion, financial stability of the world? These types of interpretations are going to be held before you, by which you can understand about what is the fiscal and financial stability of that particular country. In this scenario, I am going to discuss about a report which has been published by CBDT. You know CBDT? CBDT stands for Central Board of Direct Tax. As per the CBDT, a report has been included before all. Like that, it talks about direct tax. And as per the records, due to the COVID-19 pandemic, our financial stability is completely depressed. During this period, if I am talking about, there is a comparison between the financial year of 2018 to 19 and 19 to 20. So during this financial year, we have to do and we have to find out some data by which what is the gaining of our country's government and what is the sources by which our government is earning. Because without getting the tax and revenues from different sources, our government will not implement different types of schemes and programs which will be in the favor and the welfare to the people of our particular countries. So my dear guys, as per the report, we have seen that 5% of direct tax collection got failed in our country. If I am talking about according to CBDT, during the financial year of 2019 and 20, 5% of direct tax collection got failed comparing to the financial year of 2018 and 19. On the basis of gross direct tax failed by. It means to say, whenever we are talking about the collections, actually our government has the resources which have been completely reduced even today. As per the data, whenever we are going through the discussions, that during 2019 to 20, total direct tax collections in our country was only 12.33 lakh crore. Only 12.33 lakh crore. But whenever we are talking about the financial year during 2018 to 19, in that period, the tax collection, total direct tax collections was 12.97 लाख करोड़. यानी सोचने वाली बात है कि जो सीबीडीटी की रिपोर्ट आई, इसमें बताया गया कि हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है 5% हमारा रिड्यूस हो गया है, फेल डाउन हो गया है. क्योंकि 2019-20 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमने जो कलेक्शन किया है वह 12.33 लाख करोड़ किया है, जबकि 2018-19 में जो हमारा कलेक्शन था वह 12.97 लाख करोड़ था. My dear guys, what do you mean by direct tax? There is a provision, there is an introduction to identify about that what is the interpretation of that particular definitions of direct tax. Actually, on the basis of direct tax, first we have to know direct tax means to say which has been, we can say, imposed to the goods or services at that particular person. Those are responsible, those particular things and people are responsible to deposit. It means to say, in the language of the economy, we can say where the incidence and input of taxation, where the incidence and input of impact of the taxations fall on the same entity, okay, fall on the same entities. In the direct tax, the burden can't be shifted by the taxpayers to the someone else. It means to say, suppose that कि यदि आपने, जैसे मान लीजिए, इमेजिन मैं ये करता हूँ कि दिस इज मोबाइल, ओके, दिस मोबाइल वाज मैन्युफैक्चर्ड इन अ कंपनी, ओके. तो जब ये कंपनी में इसको मैन्युफैक्चर्ड किया गया, तो वेन एवर गवर्नमेंट फेल्ट अबाउट दैट दिस इज द वेलफेयर फॉर ऑल ऑफ द पीपल एंड ऑल पीपल are interested to use because this is the part of digital India.
It mean to say government will relieve something, government will give executions. सरकार उसको कुछ इंसेंटिव्स देगा, कुछ उनको रिलीफ देगा, कुछ डिस्काउंट देगा. ओके, इन दैट क्राइटेरिया whenever this on the basis of these products, when the company is getting the subsidies, mean to say this will be lesser and reduced in the market price. तो ये मार्केट में थोड़ा सा स्लो कम हो जाएंगे इसकी दाम. But whenever it got the tax, whenever it is produced and manufactured in the company, in that period it will be costly in the market concerning to the we can say factory cost. Okay, तो जिस चीज पे कॉस्ट लगाया जाता है, जिस व्यक्ति पे टैक्स लगाया जाता है, वो उसी से जब किसी भी चीजों को, उस चीजों को जब उपलब्ध कराई जाती है, उसी से जब वो टैक्स लिया जाता है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. लेकिन जब किसी पे टैक्स लगाया जाता है, उससे नहीं लेकर किसी और से लिया जाता है. इमेजिन करेंगे जैसे पार्ले जी बिस्किट जो होता है, वह पार्ले जी बिस्किट हमारा 1 रुपया 80 पैसा का होता है. फाइनल हमारा मार्केट फैक्ट्री कॉस्ट होता है. ठीक है, लेकिन वही चीज़ को जब हम मार्केट में आते हैं तो उसको हम 3 रुपया में लेते हैं, यानी 1 रुपया 20 पैसा उसमें हमें जाता है. तो उसमें क्या हुआ, ये इनडायरेक्टली कंपनी बनाया 1 रुपया 80 पैसा में, वो हमें दे रहा है 3 रुपया में, मिनटू 1 रुपया 20 पैसा हमें अपने पैकेट से देना पड़ा. यानी प्रोडक्ट किसी और ने किया, उसको पे किसी और ने किया. तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स. इज इट ओके? तो इसको लेकर के सरकार ने डिफरेंट प्रोविजंस हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन आवर इकोनॉमी, लाइक लार्ज टैक्सेशन ऑन इनकम, वेल्थ. तो इस तरह से जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होती है कंप्लीटली इम्पोज ऑन वेल्थ और इनकम पे सबसे पहले लगाई जाए. दैट्स व्हाई वी कैन से इनकम टैक्स, वी कैन से कॉर्पोरेट टैक्स, वी कैन से प्रॉपर्टी टैक्स, दोज आर कंसिडर्ड टू बी द डायरेक्ट टैक्स. तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये सारे जो टैक्सेस हैं, यानी जो डायरेक्ट जिन पे लगाए जाते हैं वही इसको डिपॉजिट करने के लिए रेडी होते हैं. एक किसी और पर जब शिफ्ट नहीं किया जा सकता, दोज आर द पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स. That's why indirect in income tax, property tax, in corporate tax, those are the direct tax. Okay. Due to that, whenever government thinks about these types of considerations and interpretations of the incentives, government has also implemented, gave the reforms of the taxations in the rate. Or finally, government has finally gave the some incentives as the reforms of the taxations in our country. और सरकार ने हमारे यहाँ टैक्सेशन को लेकर के कुछ न कुछ रिलीफ की है. लाइक दैट रिडक्शन इन द कॉर्पोरेट टैक्स टू 22% फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2019 to 20 फॉर ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज. तो सरकार ने क्या की कि आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में लगभग सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 22% गिरा दिया. जितनी भी हमारे पास एग्जिस्टिंग जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, वे सारे के लिए सरकार ने 22% तक टैक्स को जो है सरकार ने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया. Whenever we are talking about the incentives for the new manufacturing, incentives for the new manufacturing domestic companies by reducing the tax rate to the 5%. और उतना ही नहीं, सरकार ने इंसेंटिव्स भी देते हैं. इंसेंटिव को लेकर के जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग जो डोमेस्टिक हमारे पास कंपनीज हैं, उनमें भी उनकी जो टैक्स रेट था उसको भी सरकार ने 5% तक रिड्यूस कर देता है. तो दोज आर द प्रोविजंस एंड सच कंपनीज हैव आल्सो बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट्स एंड मिनिमम अल्टरनेट टैक्सेस. लाइक वी हैव टू टॉक अबाउट द MET, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. So finally government has given the provisions and government has also exempted several rules and regulations by which the companies can sustain in our economy. They can also give the contribution to our economy. Under these schedules, government has exempted several things. Like if I'm talking about, so on the basis of minimum alternative tax, alternate tax, it has done in order to promote. Try to understand why government has given the exempted to the minimum alternate tax. MET का कि सरकार ने किस लिए प्रोविजंस को एग्जेम्प्ट किया. तो दिस वाज द रीजन दैट इट हैज डन इन ऑर्डर टू प्रोमोट ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट. तो सरकार इसलिए इसको एग्जेम्प्ट किया, MET को इसलिए कम किया, इसलिए टैक्स को कम किया, जिससे कि हमारे यहाँ ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको सरकार उसको प्रमोट करे, कंपनियां उसको प्रमोट करे. एंड दोज आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ आवर इकोनॉमी, जिससे कि वो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा कर सकते हैं, योगदान दे सके. राइट. एंड देयर इज द मेन प्रोविजंस टू फाइंड आउट अबाउट द रिडक्शंस, व्हाई दिस टाइप्स ऑफ रिडक्शन डे बाय डे इज अकरिंग. And our financial economy is also getting the stability, but in spite of, like if I'm talking about the COVID-19, due to that, whenever we are comparing since 1913,
Yeah, whenever we are talking about the 2008, the financial stability and physical stability of our country is was completely worst. तो अभी की स्थिति उससे भी दयनीय स्थिति आ चुकी है. ओके, तो whenever we are talking about the MAT reductions, तो in the reduction is MAT rate, सरकार ने जो MAT rate को रिड्यूस किया है वो that is 18.5% to 15%, यानी 18.5% जो हमारे यहाँ MAT था, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो थी, सरकार ने 18.5% से घटा करके उसको 15% कर दिया है. ठीक है, किस कारण क्या है इसके पीछे? दिस इज द रीजन टू प्रोमोट ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, जिससे कि हमारे देश में ग्रोथ भी हो सके और इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके. दैट विल बी कंट्रीब्यूशन टू द एमएसएमई, जिसके द्वारा हम एमएसएमई को बहुत हद तक जो भी हमारे एक कह सकते हैं प्रोविजंस हैं, जो हमारे पास एक थॉट हैं, दोस कैन बी डिराइव्ड हियर, तो उसको हम एक सही वे में ला सकें. तो दिस इज द रीजन बाय विच वी कैन से रिडक्शन इन मैट रेट फ्रॉम 18.5% टू 15%. इट मीन टू से टू प्रोवाइड रिलीफ ऑफ द कंपनीज, तो जिससे कि हम कंपनीज को रिलीफ देंगे, राहत देंगे, विच कंटिन्यू टू अवेल एग्जेम्पशंस एंड पे टैक्स अंडर मैट, जिसको मैट के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के हम कह सकते हैं कि एग्जेम्पशंस को अवेल करेंगे, बाय विच दे कैन प्रोमोट the investment. Okay, and as per the need of the basics and non-basics of the people, it can be manufactured in the smoothly the provisions to give the facility to that particular people, they can avail of getting that. So this is the main provisions under these schedules. If we are talking about the exemptions, the exemption from the income tax, why government has been given? So there was a provisions about the exemptions from the income tax is to individuals. Individual means I'm talking about the particulars people. Okay, the individuals earning income, this is called upping, growing to the 5 lakh and increase in the standard deductions from 40,000 to 50,000. It mean to say सरकार कहती है कि जो एग्जेम्पशन हम कर रहे हैं, तो एग्जेम्पशन जो हम इनकम टैक्स में कर रहे हैं उससे क्या होगा कि इंडिविजुअल्स जो भी जो लोग हैं उनको प्रत्येक लोग का अपना एक इनकम हो जाएगा और उनकी जो होगी उनको बढ़ाने की कोशिश होगी, जिससे कि 5 लाख से भी है ही, और साथ ही साथ सभी का इनकम जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ उनकी एक इनकम बढ़ जाए. ठीक है, एंड दिस वाज द मेन इंटरप्रिटेशन टू रेवेन्यू इम्पैक्ट ऑफ दिस रिफॉर्म्स हैविंग एस्टिमेटेड एट 1.45 लाख करोड़. और ये जो रिफॉर्म्स लाया गया, इस रिफॉर्म्स के अंतर्गत एक एस्टीमेट लाई गई कि रेवेन्यू इम्पैक्ट ऑफ दिस जो रिफॉर्म्स होगा वह 1.45 लाख करोड़ तक जाएगा. एंड फॉर द कॉर्पोरेट टैक्स जो होगी यह 23,000 करोड़ रुपया तक चला जाएगा फॉर द पर्सनल वी कैन से पर्सनल इनकम टैक्स. ठीक है, तो इससे भिन्न भिन्न प्रकार के चीजों को फायदा भी होंगे. If we are talking about the record, as per the funds, highest funds refund. The high funds during the financial year of 2019 to 20, it has been gained. Like I am talking about the total refunds which was given under the comparing of the 2018 to 19 of the financial year. First we have to know about what was the worth and what was the refunds, high refunds during 2019 to 20. So my dear guys, the total refunds was given रुपया 1.84 लाख करोड़ as compared to 1.61 लाख करोड़ in financial year 2018 to 19. यानी 2018-19 में जो हमारे पास रिफंड्स थे वह टोटल 1.6 लाख करोड़ रुपया था, लेकिन 2019-20 की यदि बात करते हैं तो यह हमारा 1.84 लाख करोड़ रुपया हुआ. वहां पर हुआ 1.61 और यहां पर हुआ 1.84, यानी कितना? तो बाय विच वी कैन से 14% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर. तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि एक नए रिफॉर्म्स लाने के बाद एक हाई जो हमारा रिफंडिंग हो रहा था उसमें एक बहुत बड़ी बदलाव हुआ. जो वहां पर हमारा पिछले 2018-19 में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा रिफंडिंग हो रहा था 1.61 लाख करोड़ का, अब हो गया 1.84 लाख करोड़, जो 14% हमारा इंक्रीज ईयर बाय ईयर कर रहा है. इज इट ओके? एंड फॉर दिस एपिसोड
government has also implemented the tax buoyancies. What do you mean by tax buoyancies? Actually, tax buoyancies is mainly used to, we can say, access the efficiency of the tax systems. तो कुछ जो है सरकार इस रिफॉर्म्स के अंतर्गत जो टैक्स बुओयेंसीज को भी उन्होंने इस्तेमाल किया। और टैक्स बुओयेंसीज जो नॉर्मली यूज होता है वह यूज होता है कि जो भी टैक्स सिस्टम है उसको किस तरह से इफिशिएंटली उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, एक्सेस किया जाए, बाय विच people can be aware and people can use and utilize under the financial stability whenever they are going through this types of tax and taxations inclusion. तो वो जब टैक्स और टैक्स सेक्शन जब इंक्लूजन की ओर जब वो जाते हैं तो उनको किस तरह से एक्टिविटीज को करनी चाहिए, बाय विच दे कैन आल्सो कोलैबोरेट टू द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हेड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस. दीज आर द मेन इंटरप्रिटेशन बाय विच दे कैन कॉर्डियली अटैच्ड, जिससे कि वो आसानी से जुड़ सकते हैं. तो इस आधार पे सरकार ने टैक्स बुओयेंसीज को उन्होंने जोड़ दिया. अंडर दिस शेड्यूल वी हैव टू स्टडी अबाउट द एक्सक्लूडिंग समथिंग लाइक दैट. वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ द टैक्स रिफॉर्म्स. यानी जो टैक्स का जो हमारे रिफॉर्म्स थे उसको उन्होंने कुछ एक्सक्लूड कर देता है, कुछ जो हटा देता है. एंड मेजर्स इन हायर एक्सपेंसेस वी कैन से द एक्सपेंसेस ऑफ द रिफंड्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 1920 एंड 20 वी कैन से. ओके, तो फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग 2020 द टैक्स एक्सपेंसेस फॉर द ग्रॉस डायरेक्ट कलेक्शंस या डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, ओके, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन या वी कैन से पर्सनल टैक्स कलेक्शन, दोज आर द पॉजिटिव रेस्पॉन्स. तो इस आधार पर जो देखा जाए तो इस रिफॉर्म के आधार पर टैक्स बुओयेंसीज जो थे वो हमारा फाइनेंशियल ईयर 20 में कहीं ना कहीं हमारे तीनों जो फॉर्म्स चल रहे थे वो तीनों फॉर्म्स, जैसे हमने अभी आपको बताया ग्रॉस डायरेक्ट कलेक्शंस, हमने बताया कॉर्पोरेट टैक्स बताया, फिर हमने पर्सनल टैक्स के बारे में चर्चा की. तो दोज आर द रेस्पॉन्सेज. इनकी जो रेस्पॉन्स थी, इनकी जो आप कह सकते हैं कलेक्शन जो थी वह पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया. और पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिस वाज 14% एज पर ईयर ऑन ईयर. प्रत्येक साल की भांति हर साल वो 14% का इंक्रीमेंट कर रही है. तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो है ये इंटरनली हो रहा है. लेकिन एज पर द सीबीडीटी सरकार को जो डायरेक्ट टैक्स आ रही थी यह कहीं ना कहीं रिड्यूस हो चुका है. तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम टू फाइंड आउट. मैं आपको थोड़ा एक डेटा दे देता हूं. तो जो डायरेक्ट टैक्स लाया गया है अंदर टैक्स बुओयेंसीज, तो टैक्स बुओयेंसीज फॉर द ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, तो फाइनेंशियल ईयर जो 20 हमारा हुआ है इसमें हम कह सकते हैं जो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स जो कलेक्शंस हुई है वह 1.12 हुआ है. लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं तो वह 1 है और जो हमारा पर्सनल इनकम टैक्स जो है वह 1.32 है. ठीक है. तो ओवरऑल वेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इंटरप्रिटेशंस दैट ऑन दिस इंटरप्रिटेशंस व्हाई सीबीडीटी introduce about the report and record that our government is getting little the reduced by the direct taxes. These were the interpretations. My dear guys, over all the interpretations to finding out the records and publishing of the reports by CBDT, some points of view must you know about what is the main point of view, what is the real funda of corporate tax, you can say DDT, you can say what we have discussed about MAT. ओके, तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं मैट क्या है. तो मैट को हम लोग बोलते हैं, मैट मीन टू से मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मीन टू से ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कैन बी अकर्ड वेन एवर अ टैक्स पेयर या बीइंग अ कंपनी लाइक दैट ए बी इज CBDT या B is an institution to collect revenue for the government and A is a company. Okay, and whenever A generates income during the financial year, okay, but taking the advantage of several incentives which have been given by organizations and institutions, their income, like from talking about exemptions, like exemptions we can say deductions like depreciations, so those are the relief which has been given by that particular financial organizations or institutions. In spite of this, whenever the tax has been reduced for that particular institutions, because this institution is working for welfare of our country and given
the big a bunch of profit and contribution to the economy. That's why government has given some exemption. So government has given the relief. During that period, its tax liability may or may not have been paid to the organizations. In the Hindi language you can say, जैसे मान लिया जाए कि जो हमारा MAT आखिर सरकार को लाना क्यों पड़ा, what was the reason? Reason was that कि जैसे मान लिया आप A नाम के व्यक्ति हैं, आप एक कंपनी की इस्टेब्लिश किए, और आप जब कंपनी की इस्टेब्लिश किए तो उस समय जो भी आपको आपके पास जो फाइनेंशियल इक्विटी था उसके आधार पर आपने शुरू हुआ। उसके बाद एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान आप अपना इनकम खुद जनरेट कर लिया, ठीक है। और जनरेट करने के साथ साथ तो आप देश की अर्थव्यवस्था में आपकी एक बहुत अच्छी भागीदारी थी, या सरकार या हमारे देश की जो पॉपुलेशन की डिमांड था उसको आप फुलफिल कर रहे थे। ये सारे चीज़ों से खुश होकर के सरकार जो इनकम टैक्स जो लॉ था उसमें किसी भी प्रकार की आपको छूट रियायत दे देती है। जैसे उसमें हम एग्जाम्पशंस की बात करते हैं, रिडक्शंस की बात करते हैं, या डिप्रेसिएशंस, इस तरह की स्थिति यदि बन जाती है तो आपको इनकम टैक्स लॉ में कुछ आपको रिलीफ दे दी जाती है। और रिलीफ देने के बाद सरकार यहाँ तक कर देती है कि आपको टैक्स जो होती है, टैक्स में भी सरकार रिड्यूस कर देती है। उसके बावजूद भी यदि आप टैक्स नहीं पे करते हैं, दैट वाज द रीजन दैट गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड अ रूल एज MAT। और यही समस्या थी, ऐसी स्थिति बन गई देश में, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि नहीं, ये इंस्टीट्यूशन जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी होगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं बरगलाना समझते हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार को बरगलाना चालू करी, जबकि उनको विभिन्न प्रकार की जो फैसिलिटीज थी, दोज आर बेस्टोड बाई गवर्नमेंट्स। इन स्पाइट ऑफ इट, इफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस या कंपनी इज नॉट बीइंग पेड revenue taxes to government, then how government can carry out several types of facility? How can provide the facility by the government to the people? There is the problem. So there was the main manifesto behind that. Finally, what happened? So this was the period of 1987. I'm talking about the background, historical background of MAT. Is it okay? So this was the period of 1985 due to an increase in the number of zero tax paying companies. तो 1987 के दौरान क्या हुआ कि हमारे देश में टैक्स पे करने वाली कंपनियां नहीं रह रही थी। मतलब ऐसा हो गया था, जीरो स्थिति बन गई थी टैक्स पे करने वाली कंपनियों को। मतलब सब लोग अपना फल फूल रहा है, सब अपने इनकम को जनरेट कर रहा है, अपनी स्थिति को सुधारने में लगे हुए, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में उनकी किसी भी प्रकार की कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही थी। तो सरकार को ऐसा जो है माइंड में ठनक गया कि मैं इनको एस्टेब्लिश करने के लिए, इनको आगे बढ़ने के लिए हम भिन्न प्रकार के रूल एंड रेगुलेशन को हम रिड्यूस कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ इट ये हमारे तो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, या तो टैक्स चोरी कर रहे हैं, या भिन्न प्रकार के एक्सक्यूजेस कर रहे हैं। तो सरकार ने किया 1987 में क्या की कि जब जीरो टैक्स पेइंग जब कंपनी हमारे यहाँ हो गई, देन गवर्नमेंट गिवन द रेजोल्यूशंस एज अ रिकमेंडेशन टू फाइंड आउट द रिजोल्यूशन ऑफ दैट दिस टाइप्स ऑफ problems and challenges. And finally, MAT was introduced by the Financial Act 1987. और उसी के तहत MAT को जो है फाइनेंशियल एक्ट 1987 के तहत सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस कर दी, विथ इफेक्ट फ्रॉम द असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर 1988 to 89। और अंततः सरकार 1988-89 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसमें सरकार ने इसको प्रभाव में लेके आ गया। ओके, एंड लेटर व्हाट हैपेंड? Later on, it was withdrawn by the Finance Act 1990 और अंततः 1990 में इसको पुनः विथड्रॉ कर लिया जाता है, और अंततः again we can say it was reintroduced by Financial Act 1996। तो 1990 में इसको पुनः वापस ले ली जाती है, और पुनः इसमें एक नया रिफॉर्म करके 1996 ईस्वी में फाइनेंशियल एक्ट के तहत 1996 में इसको पुनः इंप्लीमेंट कर दी जाती है। बिकॉज दिस वॉज द रीजन एबल पीपल, एबल कंपनी, एबल इन्वेस्टर वॉज अनेबल टू पे टैक्सेस। वो सक्षम थे, उसके बावजूद भी हमारे देश को, सरकार को टैक्स पे नहीं कर रहे थे। यही रीजन थी कि 1987 में सरकार ने इस पे रिकमेंडेशन लाई, एक प्रोविजंस पास कराया, और अंततः MAT को लाया। That's why we can say MAT is a hardcore roots
या वी कैन से आर्म्स या वी कैन से टूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which whenever it can be occurred and perceived to that someone is avoiding paying the tax, यदि ऐसे उसको महसूस होता है कि टैक्स पे करने से भाग रहा है, they can be grasped. It mean to say in the final way we can say tax avoidance can be prevented. और मैट को लाने से एक फायदा हो जाती है कि जो टैक्स देने से बच रहे थे वे सारे को इसके गिरफ्त में ले आया गया. This was the very good initiative which has been started by your government during 1990. Finally, it was implemented in 1996 after the reforms and restorations of that interpretations of the reforms. और उसको रिफॉर्म्स के तहत उसको क्या किया गया कि 1996 में सरकार ने लॉन्च कर दी. अब एक हमारा होता है कॉर्पोरेट टैक्स. एक कॉर्पोरेट टैक्स का होता है, व्हाट डू मीन कॉर्पोरेट टैक्स? एक्चुअली कॉर्पोरेट टैक्स इज अ पार्ट ऑफ लेवी and it is also levied on a firm's profit by the government. यानी जो आपने फर्म चला रहे हैं, फर्म की जो आपकी प्रॉफिट होती है, जो आप कंपनियां चला रही हैं, बहुत बड़ी आप कॉर्पोरेट चला रहे हैं, उससे जो आपकी इनकम होती है उसी पे आपको देना होता है. उस पे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उस पे आपको गवर्नमेंट को लेवी देना होता है, टैक्स देना होता है. दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज टैक्स ऑन ऑपरेटिंग अर्निंग्स. यानी इवन टुडे डेली बेसिस व्हाट यू आर अर्निंग you have to pay as a tax after the expenses have been deducted. आपने जितने भी खर्च किए और कितना आपकी इनकम हुई दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल आपके पास इनकम है उनमें से आप जो सरकार के देते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स. दिस टैक्स या वी कैन से द रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स इन इंडिया वेरीज फ्रॉम ओनली टाइप या वन टाइप टू अदर कंपनीज. तो भारत में हर कंपनियां का, हर इंडिविजुअल कंपनीज का अलग अलग टैक्स रेट्स होते हैं. लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक कॉर्पोरेशंस एंड इफ आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन कॉर्पोरेशंस, बोथ हैव डिफरेंट टैक्स रेट. यदि मान लिया जाए कि भारत के हम ओनिडा की बात करते हैं और एक हम सैमसंग की बात करते हैं, तो सैमसंग और ओनिडा दोनों की जो कॉर्पोरेट टैक्स होंगे दोनों के अलग अलग होंगे, दोनों के डिफरेंट होंगे. इज इट ओके? एंड वन पॉइंट इज ऑल्सो डिराइव्ड इन दिस टॉपिक दैट वी नो DDT. DDT actually stands for dividend distribution tax. You might have heard and you might have understood by the name of DDT, dividend distribution tax. यानी टैक्स हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. हाउ इट कैन बी पॉसिबल? आखिर ये पॉसिबल कब होगा? So actually, my dear guys, you must know about that. DDT refers to the distributions of the profits to the shareholders of a company. यानी किसी भी कंपनी के प्रॉफिट्स जो होते हैं, प्रॉफिट्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स के बीच में. एक्चुअली DDT इज अ टाइप ऑफ टैक्स. दिस इज अ काइंड ऑफ टैक्स. यह भी एक प्रकार के टैक्स ही कहलाता है. दैट इज पेबल ऑन द डिविडेंड्स ऑफर्ड टू द इट्स वी कैन शेयर होल्डर्स बाय द कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट के द्वारा जो भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनके बीच में इसकी बंटवारा कर दी जाती है ऑन द बेस ऑफ बेनिफिशियरीज एंड प्रॉफिट्स विच हैज बीन गेन ड्यूरिंग what limit has been gained or what limit has been limited there. After the analyzing all the considerations of the interpretations of the profits and provisions, finally they got the sitting and they can distribute among those the shareholders what the benefits and profits which have been gained. So this was the main interpretations. And in this schedule we can say high dividends. High dividend mean to say, what do you mean high dividend? High dividend mean to say a greater tax burden for the corporate entities. यानी एक बहुत बड़ी जो हमारे पास टैक्स का जो बर्डन होता है वो एक कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए हो जाता है. Under this structured program, what we have discussed, we all have discussed about the, as per the CBDT, direct tax collection in our country fell by 5% comparing to the financial year of 2019-20. 2018 and 19 we have discussed. So several provisions, interpretations of rules and regulations under the financial stability of our country. What were the provisions? Which types of
time occurred, then government has also implemented the rules and regulation for all of the companies. All matter has been discussed here, and these topics are mainly important for all of those students who are preparing for mains examination. Further, that means you can go through the PTs and prelims examination, because whenever government question can be occurred before you, what is the reductions of direct tax collection in our country during the financial year 2020 to 21, you can go through. Some points I have discussed, like MAT, like DDT, like corporate tax. And under this schedule, what were the provisions and which types of reforms has been given by DBT, CBDT? All matter has been discussed here. Very, very important for all of you that. And my dear guys, I am requesting for all of you that a magazine, weekly or monthly, which is being processed, produced to you by Mission IAS, go through all the derivatives, all the knowledgeable part of that interpretations of that magazine, because those magazines, after the considering the preparations of complete motto of the mind, after the getting the decisions for our prelims and mains examination, which types of question can be occurred before you, and which types of provision we have to accelerate it with this magazine, those are completely composed there, which is very, very useful for all of you whenever you are going through all the pages to pages, page by page, most important for all. So you must go through the notes, which is very remarkable for you all of. Thanks you. That's all. God bless.